General sir, good morning. I think shall I start? Right. And welcome to Dr. Susma ji and all others. I think I have just talked in brief. Right. So we are here to have this day as a Rajasthan Adventure Day, and we will have other programs as we have got through WhatsApp messages. We are having the program in UP by our director Nilofer, and then Swati Acharya ji is conducting it in Mumbai chapter, and then Daya Misra ji at Jharkhand. And here in this online, we will try to talk about Magan Bissaji contributions, who in 1984 made a history along the Sikri Pal. I think we all know about a very famous personality, and it was all due to the sacrifice of Magan Bissaji, which helped us to have the first female climb Mount Everest. So from where our glory starts, and today we will have a talk starting from by our president, Lieutenant General Raman Dhawan, and after that we'll have in line Dr. Susma ji will talk, and then Wing Commander SKJ Nair, and then yesterday Wing Commander Sanjay Thapar was also mentioning about if he comes, we'll have to speak about. And Colonel S.K. Nagpal is there with us, and Mrs. Rukmani Chandran, she has asked excuse because of some unhappenings. So, and but in between also, if one of you want to speak, please feel free to talk. It's just get together and talking about contributions and taking things forward. So we will have this occasion with us to remember our glory and talk about contributions of one individual and then team members and the family, and then we will take it forward. And he was very close to our founder, Brigadier Gyan Singh, and it was just our privilege. He contributed so much for Rajasthan chapter and for NAP. With this, I think I will request our President, Lieutenant General Raman Dhawan, to start the program. Thank you, sir. Please. Thank you, KK. Good morning, all to all chapter directors. It is a really, I'm extremely honored that we are celebrating this Magan Bissa Day or Rajasthan Adventure Day today, and there is so much of participation. I want to especially acknowledge the presence of Mrs. and Rohit name Rohit Ashwa. And so it is a very good day for us that we are all gathered over here to recognize and celebrate the life of one of our founder members. Not only a founder member, but also somebody who's done some great work for adventure in India. The more I say about Magan Bissa, the less there is. That man, in his 40 years of career, he's achieved so much. And his contribution to adventure for the youth of this country in the field of mountaineering and in the field of aerosports has been tremendous. In fact, he made so many personal sacrifices in order to promote adventure sports amongst the youth of this country. And for his tremendous work, he received a whole lot of recognition
He received a lot of awards, and in fact, finally, he was also awarded with posthumously with a lifetime achievement award, that is the Tenzing Norgay Adventure Award. So there can be no greater recognition for a man who is in the field of adventure sports. And I'm extremely honored to say that he was a member of the National Adventure Foundation, a life member, a chapter there. And unfortunately, I did not have the pleasure or the honor to meet him personally, but I see his legacy being carried forward by Mrs. Sushma Bisa and their son Rohit Bisa. It is definitely very heartwarming to see the way that they are planning to carry his work forward. And I think there can be no greater honor for his memory and for to him, then for us who are now here in NAF to carry forward his vision and to continue to do the kind of work that he did in our respective areas. The amount of dedication that he showed, the amount of efforts that he made, not only to take forward adventure in this country amongst the youth, but to take forward the name of the National Adventure Foundation. By taking forward the name of National Adventure Foundation, he not only helped his own chapter, but he helped all the other chapters also. All the other chapters and affiliates, because they were also being then recognized as, they were also who were saying that we are chapters of the National Adventure Foundation. And it is, so his contribution to our popularity, to our name is, no words are enough for the kind of achievements or the kind of contribution that he has made towards us. Therefore, today we recognize him, we celebrate his life, and I see behind Mrs. Bisa a whole lot of awards which are there in the cabinet behind her. I presume they belong to him, that the ones which he has received. I mean, it is such a fantastic sight to see that all those awards which are there behind him, behind you, ma'am. And therefore, I want to thank you also. I want to thank our executive director also, whose idea it was that we should celebrate this as a, at the national level as a Rajasthan Adventure Day, along with Mrs. Bisa and Rohit. He had wanted. From what I've heard after interacting with a whole lot of people who have known him, including Mrs. Bisa and Rohit, he had wanted that this be carried forward, that adventure sports be carried forward amongst the youth and to be even more popularized. He had wanted that NAF should be recognized as the premier adventure body in this country. And he had wanted and it is that vision of his, that dream of his, that I want to take forward. And that is my vision also as a president of the National Adventure Foundation. I would like all of us, all chapters, to function as one family, to function in support of each other, helping each other out, telling each other about our experiences, about our best practices, conducting events, asking participation from others, and conducting events not only in our own small geographical areas, but conducting events while in our, they can be in our geographical areas, but which are conducted at the national level. Therefore, it is for example, I want to share it with you that in the near future, we are planning to have a Ganges rafting and kayaking expedition, in which we hope to have participation of all the three services, armed forces, and children from the rural areas. And this is going to be a national event on the calendar of the
NAF. And therefore, with 38 chapters that we have, 30 and so many affiliates, we should be able to organize at least one event at the national level every month. Even if one chapter plans to do it once a year, some major activity with support from the headquarters of the National Adventure Foundation and with support from the other chapters. Each chapter should be able to conduct at least one major activity in a year. And it will, you'll have press releases in the national press. So the kind of popularity and the name that you will get, and similarly, National Adventure Foundation will get is going to be fantastic. And therefore, I would like all of you, please, we must interact with each other. We must carry the name of National Adventure Foundation and adventure sports forward in this country. And I'm sure that Magan Bisa, who would be looking down upon us from the heavens that he is in, he would be most happy if we are able to do that. So that is all that I have to say. I would once again like to thank all of you for coming for this meeting, for this Zoom meeting, and to celebrate the life of Magan Bisa. I would now like to hand over to Mrs. Bisa to say a few words on this great day. Thank you. Madam, it's to you. Namaste. Thank you, sir. Thank you, President, NAF President, Lieutenant General Dhawan वर्मा जी, एंड जितने भी चैप्टर डायरेक्टर्स जो अभी इस मीटिंग में हैं, मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगी कि वो सब इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। जैसा कि धवन साहब ने बताया था कि मगन बिस्सा जी 76 से ही एडवेंचर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने केवल माउंटेनियरिंग नहीं किया, 4 बार वो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में हिस्सा ले चुके हैं और ऐसी जहां से समिट बहुत इजीली हो सकता था वहां से उन्होंने लाइफ सेव किया था, ये भी सभी लोग जानते हैं। और इसीलिए उनको IMF का गोल्ड मेडल और प्रेसिडेंट अवार्ड्स और जो भी अवार्ड्स मिले हैं वो उनके, क्योंकि वो टेक्निकल मैन माने जाते थे इंडिया के, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत से एक्सपीडिशंस में हिस्सा लिया और आर्मी 84 आर्मी एवरेस्ट में तो उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था और उनके लिए कैलेंडर भी निकाला गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने हिंदुस्तान में चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, जहां से वो जिस मिट्टी से वो पैदा हुए थे उस सैंड ड्यून से निकल के और उन्होंने हिमालय में जाके अपना परचम फहराया। तो इसके लिए तो खैर हम लोग सभी जानते हैं कि उनको जितना ज्यादा याद किया जाए कम है। अभी अनफॉर्चुनेटली वो एक दुर्घटना में लास्ट ईयर 14 फेब को ही उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि दुर्घटना तो चाहे एडवेंचर एक्टिविटीज हो चाहे सड़क पे चलते हो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को जिस शान के साथ जिया था उसी पैशन के साथ वो चले गए। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के वो फाउंडर मेंबर थे और उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब के साथ बहुत काम किया और वो उनको चाचा ही बोलते थे और उनके साथ उन्होंने NF के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में एडवेंचर एक्टिविटीज को बहुत बढ़ावा दिया और जिस चैप्टर को जब जरूरत हुई और जब भी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब ने या हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिन्होंने जब भी बोला पूरे चैप्टर्स में जाके उन्होंने हेल्प किया या उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने एरो एक्टिविटीज में पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराप्लेन, माइक्रोलाइट और जो भी एक्टिविटीज थी उसमें उन्होंने बहुत काम किया। वाटर स्पोर्ट्स में भी उन्होंने काफी, इवन एक बार कोटा में चंबल में एक आर्मी का एक चल रहा था, उसमें वो वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे और मगन जी वहां पे पैरासेलिंग करवा रहे थे। जब उनको पता चला कि मगन जी ने भी वाटर स्पोर्ट्स किया हुआ है तो बुलाने के लिए आए और मगन जी ने उनको सिखाया था। इसी तरह सभी फोर्सेस में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे BSF हो, सभी के लिए उनका ये रहता था कि जितने एक्टिविटीज हम उन लोगों को फ्री में करवा पाए तो हमारे देश की सेवा जो कर रहे हैं उनके लिए वो काम करें और इसलिए उनका हमेशा से उनमें योगदान रहा है। जो भी एक्टिविटीज रही है फोर्सेस के लिए उसमें भी उनका पूरा योगदान रहा। इसके अलावा 7 साल तक उन्होंने नेशनल यूथ फेस्टिवल में उन्होंने
काफी जो नेशनल लेवल के कैंप्स हैं वो भी हैंडल किए। और अभी आज हम लोग सुबह ही हैंडीकैप बच्चों के लिए पैरासेलिंग करके आए हैं, क्योंकि पैरासेलिंग के तो वो बहुत ही विशेषज्ञ कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 2.5 लाख लॉन्च उन्होंने करवाए थे। और उनके साथ मुझे भी बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज में रहने का मौका मिला, और उन्हीं से इंस्पायर होकर ही मैंने एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू की थी, और आज पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ मैं उनकी सहयोगी बनकर ये सब एक्टिविटीज करवा पाई। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ने जो उनको मौके दिए, जो पूरे हिंदुस्तान में एक्टिविटी को फैलाने के लिए, उसके लिए मैं नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन का हृदय से मैं आभारी हूँ। और आज जो पूरे चैप्टर्स जो हमारे नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ये कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। आज हम लोगों ने भी बीकानेर में काफी एक्टिविटीज करने की कोशिश की है, क्योंकि एडवेंचर में उनकी जान बसती थी, तो इसलिए हमने शुरुआत आज सुबह हैंडीकैप बच्चों को पैरासेलिंग करवाने से की थी। और उसके बाद में अभी ब्लड डोनेशन कैंप हमारा चल रहा है, जिसमें लगभग 20-25 लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ताकि लोगों की जिंदगी बचा सकें। वो एक बूंद रक्त भी लोगों के लिए फायदेमंद है, उनकी जिंदगी को बचाने में सहायक है। तो आज हम लोग वो भी कर रहे हैं, और उसके साथ काफी सारे युवा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और शाम को स्टेडियम जो है, वहां पे हमने क्लाइंबिंग वॉल बनाई हुई है, जो राजस्थान की पहली क्लाइंबिंग वॉल थी और भारत की तीसरी वॉल थी। तो उस पे भी आज शाम को एक प्रोग्राम रखा है, और उसको वृक्षारोपण भी वहां पर रहेगा। और उसके बाद में शाम को कुछ गरीब लोगों के लिए वस्त्र वितरण और कुछ इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे। पर एडवेंचर से रिलेटेड प्रोग्राम से हमने आज की शुरुआत की है, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से मगन बिस्सा जी ने पूरे देश में अपना नाम एडवेंचर के थ्रू किया और NAF के थ्रू किया, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा NAF इसी तरह से सपोर्ट करता रहे, और हमारा NAF आगे दिन दुनी रात चौगुनी ऊंचाइयों को छुए। इसी कामना के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम। आई थिंक NAF को आप लोग को मदद NAF करेगा या आप लोग NAF की मदद करेंगे? इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड म्यूचुअल, एंड आई विश all the chapters including you must help NAF to get some direction. And as adventure is a very risky field, I think we all know, and I remember the book which was written by Gyan Singh, Brigadier Gyan Singh, and in the first chapter it is mentioned, bring me thy failure. So most of the Indian could not achieve, cannot achieve things because they fear failure, and that is what we have to conquer as a sports person or in a dangerous sports. So I think once we conquer this, in this book he has written, even the Prime Minister and Rashtrapati, President of India, they acknowledge this fact, how dangerous the activities like going to Mount Everest or any such activity which adventure or NAF includes, all those, they are very dangerous, but it's all fun, and we have to learn things and keep moving forward. I think Wing Commander Sanjay Thapar was here, so I will request Wing Commander Thapar, are you there? He was here just now. He was here just now. Yeah. In the meantime, Rohitswa Bissa, may I request you to say a few words? Thank you so much, sir, for allowing me on this platform. Yeah, please. पिताजी हमेशा कहते थे कि एडवेंचर से कभी डरना नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट सीढ़ियों से स्लिप होके भी हो सकता है। So it's not like कि आपका एडवेंचर रिस्की है इसलिए आप एडवेंचर नहीं करें। तो वो इसलिए हमेशा सभी को प्रमोट करते थे, और उनका टारगेट ये रहता था कि कभी भी जब भी हम एडवेंचर एक्टिविटी करें, वेदर वो प्रमोशनल है कि कमर्शियल है, बिजनेस के लिए है, उनका टारगेट ये रहता था कि पहले की जो 2 या 3 फ्लाइट्स हैं, लाइक वेदर इट्स क्लाइंबिंग, वेदर इट्स बैलूनिंग, वेदर इट्स पैरासेलिंग, वो हम ऐसे लोगों को कराएं जो लोग खाली इमेजिन ही कर सकते उस एक्टिविटी करने के बारे में।
लाइक हम जब भी बैलूनिंग कराते थे, वो जो वहाँ पे आसपास जो वर्कर होते थे, पियोन्स होते थे, उनको सबसे पहले फ्लाइट देते थे, चाहे वो वीआईपी के लिए इवेंट हो, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए इवेंट हो। जो सबसे लोएस्ट रैंक का आदमी होता था, लाइक कोई पियोन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए, उनको सबसे पहले वो एक्टिविटी कराते थे। तो उनका टारगेट ये रहता था कि उनको एक्टिविटीज कराई जाए जिनके लिए वो पॉसिबल नहीं है, जो खाली ड्रीम ही कर सकते हैं उनके बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में। तो इसलिए हमने आज पैरासेलिंग, सुबह सुबह पैरासेलिंग भी इसलिए उन्हीं बच्चों के लिए रखा जो लाइक ब्लाइंड है, जो डेफ एंड डम है, स्पेशली चैलेंज है उन बच्चों के लिए, ताकि जो जो लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि हम ये एक्टिविटी करनी है, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता भी है, उनको हम पहले प्रमोट करें इस चीज में। क्योंकि जिनके पास लाइक पैसे हैं, वो जाके कोई भी कंट्रीज में आराम से बैलूनिंग कर सकते हैं। मालदीव में जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, थाईलैंड में जाके बैलूनिंग कर सकते हैं, या गोवा में जाके पैरासेलिंग कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास ऐसे सोर्सेज ही नहीं है, उनको कराएं, उनमें उनको ज्यादा खुशी मिलती थी पापा को। तो हम लोग भी उसी संदेश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी इन्हीं लोगों को सबसे पहले फोकस रखेंगे। एंड इवनिंग में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आज प्लांटेशन ड्राइव का, जहाँ पे इंडिया का 3rd नंबर क्लाइंबिंग वॉल बना था। तो लाइक अराउंड 21 प्लांट्स हम लोग वहाँ पे आई शुड रादर कॉल दैट ट्रीज, कि हम ट्रीज प्लांटेशन करेंगे आज वहाँ पे, ताकि वापस उस क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स को भी वापस से प्रमोट किया जा सके। आपका टॉक करा देते हैं, इसके बाद आप बोल के जाइए। जूम। हाँ रोहित सर। हाँ सर। कोई नहीं, थोड़ा सा बोलिए आप, फिर भी आप रोहित कैरी ऑन, रोहित कैरी ऑन। ओके। हाँ सर। तो सर हमारा मोटिव, हमारा हमेशा टारगेट यही रहेगा कि हम उन लोगों को एक्टिविटी सबसे पहले कराएं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है एक्टिविटीज करना। तो हम लोगों ने आज से प्लानिंग किया है कि हम प्लांटेशन ड्राइव करने के बाद में हम आज ही से क्लाइंबिंग प्रैक्टिस सभी के लिए चालू करेंगे, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे पिताजी हमेशा करा करते थे, उन्होंने इस क्लाइंबिंग वॉल को 96 से फ्री ऑफ कॉस्ट ही रन किया था अभी तक। आप मानिए उसके अंदर क्लाइंबिंग रोप, हार्नेस, व्हाटएवर द मेंटेनेंस कॉस्ट था, वो सब उन्होंने बेयर किया था, और हम उसी की लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे। और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम लोग हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए पैरासेलिंग करवाते ही रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस टू हियर कि आपने ये जो एक्टिविटीज आज कर रहे हैं। आफ्टर दिस प्लीज सेंड अस अ स्मॉल राइट अप, जो स्पेशली ये जो चैलेंज चिल्ड्रन और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंबिंग वगैरह के जो आप कर रहे हैं, with some photographs and all, do send us a small write up so that we can put it on our web page also. Sure sir. Very good. केके आपका माइक म्यूट है सर। सॉरी, गुड पॉइंट। And now in the meantime, I think Wing Commander Sanjay Thapar may join. I had requested him to say a few words because he wanted to convey a few of the points, and his association with Magan Bissa ji had been quite clear and obvious, and for a long time. In the meantime, Sudhir Nagpal sir, senior, unless Colonel C.K. Singh sir, you want to say something? Colonel C.K. Singh. Thank you. Yes, Thank you please, yes, sir. Before Nagpal. Dhawan sir, good afternoon. Dr. Sushma Mishra, are you here? Good afternoon, and good afternoon, everyone. I can only say my association with Magan Mishra ji had been since 70s. We entered Agra first time. That time, Major V.P. Singh, who was with the PBG, retired as brigadier, he came to do his para jumping basic course. By then, of course, I had done a lot of jumps, and I have done my para in my skydiving also. And I can tell you one thing. Firstly, I'll tell you about the Brigadier VP, because he was my good friend. I've stayed in his mess, in PBG mess also.
when he jumped, I jumped with him. And that time we didn't have mobile and other thing. I carried my camera, took his photograph, and that was rare photograph. With Magan Bisaji, so by then I had done my mountaineering, winter basic, advanced courses, and I was also a lot of interest. Of course, subsequently did a lot of this thing. So he generated interest in me about mountaineering, and we became good friends, kept on meeting. And later on, after my retirement, when I joined NAF, again, we came closer. And Dr. Susma Mitra, again, I came to know. In fact, she has been a force to reckon behind him, because every time when he was conducting parasailing and other events, Dr. Susma Mitra, his better half, was always with him, and she also has encouraged him a lot. And I'm very happy she is here conducting everything. All the events and legacy is going being continued. I don't want to say much more because there are so many speakers. I would pray Almighty God to give peace to the departed soul, and he should remain with us all throughout. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. CK Singh, sir. Now, Wing Commander Sanjay Thapar is with us here. Are you getting? Sanjay Thapar ji? Yes, I am able to listen. Are you able to hear me? Yes, sir, we are getting. Please speak. Now your turn. Good afternoon, everyone. Thanks to the President for his initiative and for his vision. And I also express my solidarity and gratitude to Mrs. Magan Bissa and pay tribute to our legend colleague who is no longer with us. I am outside in a marriage function. I am not able to join for the full time and talk longer. All that what I would like to say, we have very able body and performers in our chapters. There are many chapters who are doing a wonderful job. My suggestion is that in our president's, adding to the president's vision, we should really build upon doing one event a month and perform and show to the rest of the country what NAF is. By just talking or giving presentations or proclaiming something, it will not work. Once people will see us by their own self and see our performance, the NAF will get strengthened. So we all must contribute to this cause and take the vision of the president forward. And we have started on a very good day and a note from Magan Bissa, and let's continue with this tribute. Thank you. Thank you, Sanjay Thapar ji. Even in spite of your busy schedule plus noisy environment where you are at the moment, through mobile you were connected and you could speak also. Thank you very much. And we hope to keep listening more and more suggestions and advices from you. In the meantime, my Mr. Thanks. I have finished. Deuskar. Hello? Yeah, anybody? K. Singh Saab. Mr. Avinash Deuskar. If K. Singh will speak later, I think Mr. Avinash Deuskar, his Magan Bissa ji close associate, and it was a very long duration, I believe, where they worked along with Brigadier Gyan Singh also. And on the name of Brigadier Gyan Singh, he has made Gyan Bharati. I think we'll love to listen something more from him. Mr. Avinash Deuskar. Are you getting, sir? सर आप सर हाँ आपको आवाज आ रही है सर क्योंकि मुझे आवाज टूट के आपकी आवाज आ रही है. आप केवल वीडियो ऑफ कर लीजिए इन केस आपका बैंडविड्थ थोड़ा कम है तो वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते हैं. आपकी आवाज अच्छा आ रही है. ठीक है. कर्नल नागपाल जी भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से.
and we can see this. हेलो हाँ, बोलिए, अविनाश जी, please. हेलो Go ahead. We are getting. हेलो, आप हम लोग को आवाज सुनाई आवाज नहीं आ रही कोई भी आपकी आपकी नहीं आ रही है? Avinash, we can hear you. Avinash, we can hear you. You carry on, please. चैप्टर हाँ बोल खुद बोल जमीर अहमद, आप इट्स गुड टू सी आप पूरा फैमिली बैठे हैं एंड यू आर जॉइनिंग इन द मीन Yes. आई थिंक बिस्सा जी, सॉरी, अविनाश जी, आर यू देयर? हाँ प्लीज। हाँ सर आ गया हूँ मैं हाँ, बोलिए जी सर, आपका वीडियो भी आ जी रहा सर है। हाँ सर सबसे पहले तो मैं एनएफ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया और श्री बिस्सा जी के प्रति हम सबकी जो विचार है, भावना है और उनके परिवार के प्रति जो संवेदना है उसको व्यक्त करने का एक आज ये कार्यक्रम आपने बनाया। मैं और बिस्सा जी का हमारा परिचय बहुत बहुत पुराना है। 1989 की बात है, मैं उसमें टाटा स्टील में था और वहां पे सबसे पहले मेरी बिस्सा जी के साथ मुलाकात हुई। तो ट्रांस हिमालय ट्रेक करके आने के बाद मुझे टाटा में काम करने का मौका मिला और जब मैं वहां गया तो सबसे पहले जो मुझे रहने की व्यवस्था हुई वो उनके क्वार्टर में, उनका क्वार्टर मैंने शेयर किया था और करीब 1-1.5 साल मैं वहां पे था उनके परिवार के साथ। मतलब उनकी माता जी हमेशा वहां पे हमें मिलती थी और उस परिवार के एक तरह से जो अविनाश जी, अब आवाज बंद हो रही है। अविनाश जी, आई थिंक बैंडविड्थ अगर कम है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए और केवल आप ऑडियो से बोलिए, अच्छा सुनाई देगा। आई थिंक कनेक्शन उनका शायद कट गया, वीडियो तो ऑफ है बट ऑडियो भी आ नहीं रहा है। There may be some problem. Never mind, he can join up later on whenever he is through. Right. We can continue. हाँ sir. May I request Colonel Nagpal to please say few words. Thank you. Nagpal sir. हाँ. Thank you, KK. Sir. Can you hear me? Yes sir, we are getting. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I first met Magan Bissa in May 2002 when I joined the NAF. Wow. It also so happens that my birthplace is Bikaner, from where Magan Bissa hails. And so we also happen to be Grais. We became very good friends. And in fact, he became my friend, philosopher and guide as far as all adventure activities were concerned, especially mountaineering and parasailing. Hailing from a humble family in Bikaner, Magan Bissa was a very religious-minded, mild-mannered, cheerful, and enthusiastic adventurist, ever ready to do any adventure activity at any time, at any place. He had done his basic and advanced mountaineering courses from HMI Darjeeling. And in addition,
He was trained in skydiving, snow and water skiing, and he also dabbled in hot air balloon. Magan Bisa had stunned all with his climbing abilities and his physical fitness. In 1987, during the Army Saser Kangri expedition, he summited the peak in a single push from the advanced base camp, and this activity earned him the Sena Medal and also the Saser coal was rechristened as Bisa coal, the only coal in the country named after an Indian. Again, in 1991, Magan Bisaji demonstrated his never say die attitude when, with the Russian Nanda Devi expedition, when he found that no Indian had reached the summit, he took permission and he straightaway climbed the summit and was the only Indian to summit Nanda Devi expedition with Nanda Devi with the Russian expedition. Though he has been in 4 Everest expeditions in 1984, 85, 92, as well as 2009. But this is the only summit which has eluded him. Not because he was not capable. He was fully capable of summiting, but because of his humane and his helpful nature. He was the lead climber in 1984 Everest expedition. He reached via the South Pole. He reached the South Pole and the summit camp at 27,800 feet, but was unfortunate not to summit Everest because he sacrificed his chance by giving his oxygen cylinder to a fellow climber who was in dire need of it and saved him. He also assisted in 1984 Miss Bichendri Pal to summit Everest and become the first Indian Indian women to summit Everest. In 2009, unfortunately, in the Everest expedition, Magan Bisaji met with an accident and had to be evacuated. Everyone had given up hope about his survival due to the multiple organ damages that he had sustained. But we feel that the prayers of all his well-wishers and the people whom he had helped in various expeditions saved him, and he survived, and he was back in active adventure. Magan Bisaji was instrumental in introducing and training thousands of youth, especially like his son has mentioned, from rural Rajasthan to adventure activities in his 40 years of career in adventure. Among his numerous achievements, in addition to the ones which I have already mentioned earlier, are the IMF silver and gold medals in 1985 and 1993, Youth Hostel Association gold medal in 1995, Maharana Pratap Award by the Rajasthan government in 1998, the Bharat Gaurav Award in 2000, and finally the Tenzing Norgay Adventure Award 2019 for lifetime achievement in 2020. Incidentally, our NAF founder, Brigadier Gyan Singh, also had been awarded the same award, but then it was known as the National Adventure Award for lifetime achievement in 1996. Magan Bisa's contribution to mountaineering in the country, in addition to the NAF and the IMF, will always be valued gratefully. And he will be sorely missed by one and all. More so by our organization, that is the NAF, as well as the other mountaineering
and adventure organizations in the country. We pray to Almighty to bless his soul always, wherever he is, and I'm certain he must be feeling very happy that this day is being celebrated today in his honor. Thank you and Jai Hind. Thank you, Colonel Nagpal sir. Thank you very much for remembering him. He was really a great man, and it will be inspiration for all NAF family to remember him and follow his guidance, direction, and whatever he has inspiration given to all of us. Now, Avinash Devskar sir, are you listening? Are you connected? Jamir Ahmed with family are there. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Please, will you like to speak something? You both are here. Thank you very much. Please, आप बोलिए. Yes, बोलिए. 14 फरवरी को जैसा कि मगन बिस्सा जी की याद में आज हम लोगों ने भी कानपुर में एक एडवेंचर एक्टिविटीज कैंप ऑर्गेनाइज किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें करीब आज सवेरे करीब 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक हमने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोगों ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को डॉट गेम, आर्चरी, गन पिस्टल शूटिंग, टेंट पिचिंग, टग ऑफ वॉर, ये सारी एक्टिविटीज कराई और सभी लोगों को लंच और चाय की व्यवस्था भी हम लोगों ने अपनी तरफ से की थी। ये हमारी एक बहुत ही छोटी सी मुहिम है मगन बिस्सा जैसी बड़ी शख्सियत के लिए, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे एडवेंचर के एक लौ जगाई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आज हम लोग जो कुछ भी हैं सब उन्हीं की देन है। वो कभी भी कानपुर आते थे, हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे हर चीज में। उनका पूरा परिवार काबिले तारीफ है कि उन्होंने एडवेंचर के क्षेत्र में बहुत ही नई बुलंदी और नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं मगन बिस्सा जी को हम लोग दिल से याद करते हैं। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में बिल्कुल उसी तरह बसे हुए हैं जैसे गुलाब में खुशबू होती है। मगन बिस्सा जी के परिवार को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना है, बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही अच्छा परिवार। उनके सारे परिवार, बच्चे, खासकर प्रिंस और ओजस, ये दोनों बहुत बचपन से हमारे यहाँ आ रहे हैं पैरासेलिंग कराने, हॉट एयर बैलूनिंग कराने, सारी एक्टिविटीज कराने के लिए। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों को साथ में रह के, उन लोगों के साथ में रह के सारी चीजें सीखी हैं। और हम लोगों ने आज उनकी याद में बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम किया, जिसकी फोटोग्राफ्स हम नैफ हेडक्वार्टर्स को भी सारी भेज देंगे और मगन बिस्सा जी के परिवार को भी भेजेंगे। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो लौ जगाई थी वो आज पूरे हिंदुस्तान में फैलती चली जा रही है। एकदम फैलना चाहिए। मैडम, आप भी थोड़ा बोलेंगे कुछ? हाँ, बोलिए प्लीज। आपका अनम्यूट कर लीजिए। आपका म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ सर, अभी आ रही है। मैं नीलोफर जी सर, मैं यूपी डायरेक्टर कानपुर से नीलोफर बोल रही हूँ सर। आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है। मेरा नमस्ते आप सभी लोगों को। और मगन बिस्सा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये बात हकीकत है, क्योंकि मैंने कानपुर में उनको हॉट एयर बैलूनिंग और पैरासेलिंग करने के लिए उन्हीं लोगों को मैं बुलाती थी। और जब भी वो पैरासेलिंग करते थे तो एयरपोर्ट के जो झाड़ू लगाने वाले होते थे उनके बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते थे उनके गरीब जो बच्चे खड़े रहते थे देखते थे। तो मगन जी की ये आदत थी कि सबसे पहले वो उन बच्चों को फ्लाइंग कराते थे कि ये बच्चे कभी बैठ नहीं सकते और कितनी मतलब तरसी निगाहों से देख रहे हैं। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उन पहले बच्चों को कराते थे, कहते थे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है और मेरा प्रोग्राम भी बड़ा सफल होता है इन बच्चों को पहले कराने से, कि इन बच्चों की दुआएं हैं मेरे साथ या जो भी है। पर ये उनकी एक हमेशा से आदत थी, क्योंकि मैं तो हमेशा कानपुर में पैरासेलिंग के लिए, हॉट एयर बैलूनिंग के लिए उन्हीं को ही इन्वाइट करती थी। और बच्चे बहुत छोटे से थे, हमारा आज 25 साल से उनका आना जाना है।
मैडम जी का और बिस्सा जी का, लेकिन उनके अंदर कोई किसी तरह की कोई भावना नहीं थी। वो हमेशा हमको भी बताते थे कि उन्होंने मुझको, मगन जी ने ही मुझको जोड़ा है कि नीलोफर ये कर लो, बड़ा अच्छा रहेगा, मीटिंग होती है, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बल्कि मगन जी और उनकी मैडम मेरे घर में ही ठहरते थे, कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर था, कभी कोई उनके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल घर परिवार की तरह रहते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। अभी हम अंडमान, पिछली बार उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा साथ रहा। मुझे एक उनकी बात बहुत याद आती है कि नीलोफर तू कितनी शातिर है, मैं तो बड़ा सीधा समझता था। मैंने एक मुशायरे की किताब वहां पे किसी को गिफ्ट दी थी, तब बड़े प्यार से बोले, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी और बहुत मुझे मतलब चाहते थे, प्यार करते थे, मुझे अच्छा मतलब अपने सपोर्ट में रखते थे, हर चीज मुझे बताते थे, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो बहुत अच्छा लगता था। उनकी याद शायद मैं भूल नहीं पाऊंगी। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें उनका प्यार हमेशा रहेगा उनके साथ, परिवार के साथ। Thank you very much, Zamir and Nilofer. Thank you very much. Thank you very much, Nilofer and Zamir. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के. Thank you. Now, as things are going emotional, नीलोफर जी, हम लोग सब आपके साथ हैं और हम लोग सब इसको महसूस कर सकते हैं। नाउ मैं अविनाश देवस्कर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर, आ गए हैं और अपना विचार रखें, प्लीज। अविनाश जी। थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा इशू था, तो जी मैं कह रहा था कि बिस्सा जी के साथ मुझे काफी समय बिताने का मौका मिला, उनके साथ क्वार्टर भी शेयर किया था और काफी दर्जनों। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए और फिर आप बोलेंगे तो आवाज अच्छा आएगा, फिर आपका जो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। जी, वीडियो ऑफ करके केवल ऑडियो पर बोलिए आप, तो हम लोग सुन पाएंगे। और उनके साथ काफी सारे ट्रैक करने का मौका मिला, जिससे कि हम एक दूसरे को काफी जान पाए। उनकी जो खूबियां थी, हम लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। बाकी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। तो हाँ, अनम्यूट किया हुआ है तो ये म्यूजिक का सुनाई दे रहा है। काफी आवाज आ रही है सर। हाँ, वो किसी का जी। तो बिस्सा जी का जो काम हमने देखा, एक बार सबको अनम्यूट नहीं तो कर देता हूँ और फिर आप सब बोलेंगे तो आप अनम्यूट कर लेंगे। अपने शहीदों को जहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। सुरक्षा बलों ने ये बात कही थी कि आज की इस तारीख पर देखते हुए कि ये एक आशंका बनी हुई थी कि आतंकी कोई साजिश को अंजाम देते हैं। क्या ये उसी में बरामदगी भी है जिस तरह की आशंका सुरक्षा? हेलो हेलो जी सर। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए अविनाश जी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो मैं कह रहा था कि सर मैं बिस्सा जी के साथ काफी समय रह चुका हूँ, उनके साथ क्वार्टर शेयर किया था, उनके साथ काफी ट्रेक्स पे गया हूँ और उस समय का दौर था जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब जमशेदपुर आते थे। मेरी तरफ काम था कि नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के वहाँ पे करीब 80 क्लब थे, तो उनके साथ उनको एफिलेट कराना। तो उस संदर्भ में मेरा तो ब्रिगेडियर उनका जो माउंटेनिंग का जो एक्सपर्टाइज था उससे मैं काफी प्रभावित रहा। आगे जाके जब इन्हें साथ में काम करने लगे, बिस्सा जी राजस्थान चैप्टर देखते थे, हम लोग नागपुर देखते थे, तो विंग कमांडर नायर साहब, बिस्सा सर और हम लोग एरो स्पोर्ट्स के कमिटीज पे थे और हमने काफी साथ में ट्रैवल किया और उस समय हमने साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग की भी बातें हमने वहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी, इक्विपमेंट भी खरीदा था। तो कुल मिलाकर उनको फील्ड में देखा है, उनको
जानने का पूरा मुझे अवसर मिला और उनका जो एक प्रभाव था वो माउंटेनियर्स पे और एडवेंचर सीकर्स पे काफी है। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब ने जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, आज उसके बारे में मुझे कुछ उनके थॉट्स के बारे में बताना है। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई वो एक सदमे के कारण हुई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब अपना बेटा उन्होंने खो दिया था, क्योंकि वो कुछ ऐसे जिसको हम कहेंगे कि कुछ व्यसनों के कारण उन्होंने देखा कि जो यंग जो पीढ़ी है उनके सामने सही रास्ते चाहिए, पॉजिटिव रास्ते चाहिए। जब उन्होंने अपना बेटा खोया तो उसका जो दर्द था, तो उन्होंने निश्चय किया था कि हमें समाज में कुछ ऐसे पॉजिटिव एवेन्यूज तैयार करने होंगे जिससे कि हम युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन कर सके। और उसी का कारण था कि नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन बना। और जब उसकी पूरे भारत में अलग अलग जगह पर जब NAF को बनाने की बात हुई, तो मुझे याद है कि जो उन्होंने कुछ बातें कही थी, जिसमें से उनका पहला कहना था कि माउंटेनियर इज सीन एज अ पर्सन हु हैज risen above the masses and there is no other pursuit in a person like mountaineering। और उनका कहना था कि माउंटेनियरिंग के माध्यम से, एडवेंचर के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति में उसका फिजिकल तो है एंड्योरेंस बढ़ाती है, पर सोशल अवेयरनेस, उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये बातें भी हम हासिल कर सकते हैं। दूसरी उनकी बात मुझे एक बहुत याद है कि उन्होंने कहा था कि जब हम लोग बड़े बड़े पीक्स क्लाइम करते हैं, माउंटेन्स क्लाइम करते हैं, तो एक तरह से हम कहीं अपना खुद का ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, पर उसके साथ साथ बड़े अचीवमेंट्स करना भी जरूरी है ताकि दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके। तो मैं और विमला, हम दोनों ब्रिगेडियर साहब के साथ अलग अलग संदर्भ में जुड़े थे। विमला उनके एक एडवेंचर सेंटर में काम करती थी एज ए डायरेक्टर, जिसे भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचर सेंटर कहते थे। और मैं जमशेदपुर में जब वो आते थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब, तो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगती थी कि उनके साथ रहना है, तो उनके साथ काफी बातचीत करने का मौका मिलता था। और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब के विचारों से भी मैं काफी प्रभावित रहा। जब नागपुर में हम लोग शादी करके आए तो कुछ थे, उन्होंने कहा कि आप नागपुर में काम शुरू करो, और उसी के चलते हमने नागपुर में चैप्टर का काम शुरू किया। और बाद में आगे जाके जब मुझे मौका मिला कि अपने जो कुछ मैंने उनसे सीख लिया था उसको प्रैक्टिकल में कहीं हम ला सके, क्योंकि कहने की बातें बहुत चलती है, पर जो माउंटेनियरिंग से या एडवेंचर से सीखते हैं उस जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सके, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी होता है। तो हमने जब अपना सेंटर स्टार्ट किया तो उसका हमने नाम रखा ज्ञान भारती। और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब का हमारी जगह पर आते हैं तो सबसे पहले, और इस तरह से हमने अपना जो काम शुरू किया उसको उनका आशीष समझते हैं। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, जो हमने श्री बिरसा जी की जीवनी के बारे में देखा, उनके तरफ से जो लोग जो कुछ बातें सीख पाए, तो उन्होंने जाते जाते भी हमें एक मैसेज दिया है। और वो मैसेज है कि माउंटेन के या एडवेंचर के क्षेत्र में सेकंड इनिंग नहीं होती है। और हमें आज शायद आज के इस वक्त में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन एज अ बॉडी, नेशनल बॉडी, हमें ये सोचना होगा कि क्या हम ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है उससे बचने के तरीके, या दुर्घटना जो होती है उसके कारण समझकर उस पर कुछ काम कर सकते हैं क्या, ताकि ऐसा फिर किसी और के साथ ना हो। और इसी के लिए एक 6-7 साल पहले मुझे हमारे जो पूर्व चेयरमैन और प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने कहा था कि एक इसके बारे में कुछ विचार करके आप बताइए। मैं अलग संदर्भ में कुछ काम करता था जहां पे मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग किए थे। और विदेशों में कई जगह पर जो एडवेंचर सेंटर्स थे उनका मुझे ऑडिट करने का चांस मिला था। तो मैंने जो ग्लोबल विजडम है उसको इकट्ठा करके, जो कॉपी लेफ्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करके एक वर्कबुक बनाया है, जो सेल्फ अप्रेजल वर्कबुक हो सकता है। इसमें अलग अलग संदर्भ में हमने हर चैप्टर के लिए एक गाइडलाइंस सेट की है, जिससे
कि हर चैप्टर अपने काम के तरीके, अपने स्टैंडर्ड्स, क्वालिटीज को हम लोग आगे बढ़ा सके। इन सब बातों को प्रैक्टिकल में लाने का काम जो वर्धा में ज्ञान भारती सेंटर बनाया है उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान भारती सेंटर के माध्यम से हम एडवेंचर के ऊपर काम कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम एडवेंचर की बातें करते हैं, कई बार हमारे एडवेंचर फाउंडेशन में भी जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें फील्ड का पार्ट ज्यादा होता है, पर एक किसी स्पोर्ट को सीखने के लिए जो जरूरी है, जिसे हम सही मायने में एडवेंचर कहेंगे, उसके ऊपर हमें जोर देने की कोशिश है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस भागम भाग में केवल लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और उनको एक अनुभूति दे रहे हैं साहस की, पर जहां पर जब टेक्निकल ट्रेनिंग का सवाल आता है तो कितने लोग हमारी जो इस एडवेंचर की जो बातें हैं इसे आगे ले जा सके। तो सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से और एक नई पीढ़ी को ट्रेनर्स डेवलप करने के हिसाब से मुझे लगता है कि नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ने आज एक निश्चय करना चाहिए कि हम सेफ्टी के ऊपर जोर देंगे, ताकि हमारे सारे चैप्टर्स के सारे लोग और जितने सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं उसमें से हर व्यक्ति अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, हमारे सारे जो एडवेंचर सेंटर्स के प्रोग्राम्स है, उसको हम एक साथ जोड़ सके। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में हमारे पास में काफी एक्सपर्टाइज है, पर वो एक्सपर्टाइज हम लोग कई बार साइलोज में है, वो अपने अपने जगह पर है, एक आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस है। हम लोगों को जरूरत है कि हम उसे ब्रिजेस के माध्यम से जोड़ सके। और इसी के लिए इसके पहले हमने कुछ प्रयास किए थे कि अलग अलग चैप्टर्स के साथ मिलजुल कर काम करने का। जब पैरासेलिंग की बात शुरू हुई थी 97-98 में, उस समय बिरसा जी की तरफ से राजस्थान की टीम हमारे यहाँ नागपुर में आई थी और उन्होंने यहाँ पर पैरासेलिंग किया था। साथ ही साथ विंग कमांडर नायर साहब ने अपनी पैरासेलिंग की टीम यहाँ पर भेजी थी नागपुर में, और दोनों टीम से हमने काफी सीखकर अपना यहाँ पर एक तरीका स्टार्ट किया था। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि हमारे चैप्टर्स आपस में मिलजुल के काफी काम करते हैं, पर जब हम आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक ऑफर कर रहा हूँ कि वर्धा में ज्ञान भारती स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है, ये हम नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध कराएंगे। और जो भी नॉलेज शेयरिंग हम आपस में कर सके, हम उसके लिए कोशिश करें। हम आपस में एक तरह से जो अपनी अपनी जिंदगी भर के जो अनुभव है उसे दूसरों में बांटने के लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार करें। और जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम के लिए पैसा लगेगा, क्योंकि मैंने अभी सुना कि काफी प्रोग्राम्स लोग कर रहे हैं जिसमें वो पार्टिसिपेंट से फंड्स नहीं ले रहे हैं। तो उसी तरह से जो जितना अपने तरफ से इन काइंड वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, वी वेलकम इट। और ज्ञान भारती सेंटर में एक कोशिश हमने की है कि हर चीज का जो प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के बेस पर, टेक्निकल ट्रेनिंग के बेस पर हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। और पर्सनल कैपेसिटी में 2 साल पहले हमने माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए स्कूल के बच्चों को तैयार किया और 14 बच्चों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। सारे बच्चे 11 स्टैंडर्ड के थे, जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में भी उसका जिक्र किया था। और ये सब संभव हो पाया क्योंकि जो दिशा निर्देश हमें एनएफ के माध्यम से, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह साहब के माध्यम से मिले थे, हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर पाए। मैंने एनएफ हेडक्वार्टर के साथ में वो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, और मैं विंग कमांडर साहब से कहूंगा कि आप उसको सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी को यदि कोई उसमें समझने में दिक्कत चाहे तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैं सभी चैप्टर्स को इनवाइट भी करना चाहूंगा कि आप लोग आइए हमारे यहाँ पर, हम बैठकर मिलजुल कर एक राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति बना सकते हैं। कुछ बातें जब हमने पिछले बार सुनी थी अपनी मीटिंग में कि दूसरे हर स्टेट में अभी एडवेंचर पॉलिसीज बन रही है, और ये पॉलिसी बनाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो काफी हद तक गाइडलाइंस जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, उसके लिए है। जबकि हम नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन जो है नेशनल लेवल पे काफी पहले से काम करते आए हैं, तो हमें अपने आप को उस काबिल बनाने की जरूरत है कि जहां पर हम पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। और इसके लिए कुछ हमें आपसी मनमुटाव है, आपसी कुछ हमारे कुछ संकोच भी है। कई लोगों को एक लगता है कि उनको जो कुछ काम है उसमें भी शायद कहीं बढ़ जाएगा काम, पर मैं सोचता हूँ कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है। और हम एक 2-3 साल का
एक टाइमलाइन लेकर प्रेसिडेंट साहब से भी मेरा अनुरोध है कि आपके मार्गदर्शन में हम अभी आज के इस दिन के मतलब संदर्भ को याद करते हुए ये भी निश्चय करें कि नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के किसी भी प्रोग्राम में कोई भी कहीं पर भी जब जाए तो पूरी तरह से वो सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करना, उसको ऑडिट करना और जहां जहां जरूरत है उनको हमने सपोर्ट करना, ये एक जरूरी बात है। और वो ज्ञान भारती स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के नाम से रखा है, उसके माध्यम से अचीव करने के लिए हम अपने तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आज बिस्सा जी को याद करते हुए उनके परिवार को मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और राजस्थान में आप लोग इस नींव को आगे बढ़ाएंगे, इस उनके जो भी एक तरह से उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है, जो मार्ग दिखाया है, उसको प्रशस्त करेंगे, ऐसा मैं मेरे विचार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज आप सबके साथ यहाँ पर बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन नई दिल्ली को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी, आपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे। आई थिंक यू मस्ट फोकस ऑन सेफ्टी एंड ट्राई टू मेक पॉलिसीज along with the government. I think our president is proactive on this and we shall put our efforts in that direction to get through this. Now I think Mr. Ajit Singh is there and Mr. K. Singh. Sir. फर्स्ट आई थिंक के सिंह को बोलने देते हैं, फिर अजीत सिंह। के सिंह साहब, क्या हम उच्चो आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। क्या हम अपना माइक अनम्यूट करिए? क्या हम अपना माइक अनम्यूट करिए? योर माइक इज म्यूटेड। माइक लेफ्ट में आपका माइक का सिंबल होगा, लेफ्ट में वीडियो एंड म्यूट। Okay, we can start with Ajit, then we can while he figures it out. Right, Ajit Singh, please. Sir, your turn. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने राजस्थान एडवेंचर डे का जो शुरुआत की है, मगन बिस्सा जी के 1 साल कंप्लीट होने पर, तो सर्वप्रथम मेरा सबसे पहले उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्होंने उनकी जितने भी बातें कही हैं मगन बिस्सा जी के लिए, तो उनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगी। एक वाक्य हमारे साथ गुजरा था जब उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जो माउंट एवरेस्ट से वो गिरे थे, काफी उनको इंजरी आई थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ हेल्प मांगी थी NAF के सभी चैप्टर से। तो उस हेल्प में हमारी तरफ से बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल, जीरो, मतलब इतना भी नहीं कि मतलब उसमें कुछ हो सकता था, हमने एक सपोर्ट किया था। लेकिन उस सपोर्ट के बिहाफ में उन्होंने, जब हमारे यहाँ NAF की जो AGM हुई थी, उसमें उन्होंने अपना जो भाव व्यक्त किए थे, वो हमारे लिए इतना बड़ा था कि वो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि उन्होंने इतने मतलब अपने इतने सॉफ्ट नेचर के हैं कि मतलब वो क्या कह सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही दिल को छुआ, हमारी बातों को हमें, और हम हमेशा ही उनको एक लीजेंड मानते रहे, क्योंकि हमसे काफी सीनियर थे और उनसे हमारी मुलाकात NAF में ही हुई और हमें लगता था कि एडवेंचर में ये काफी पुराने हैं, हमसे काफी सीनियर्स हैं और इनको हम लोगों ने फॉलो किया है काफी समय से कि जितने भी एडवेंचरिस्ट हुए हैं इंडिया में, मोस्टली टाटा एडवेंचर फाउंडेशन में फर्स्ट में आए थे और टाटा एडवेंचर फाउंडेशन से ही शुरुआत हुई है उन लोगों की। और टाटा झारखंड में होने की वजह से हमें टाटा एडवेंचर फाउंडेशन के बारे में कुछ ज्ञान था और हमेशा सोचते रहते थे कि ये लोग काफी कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक इंस्पिरेशन थी हमें उनके बारे में और उनसे हम बहुत ही जुड़ाव महसूस करते थे, क्योंकि वो टाटा में काम किए हुए थे और NAF से ही हमारी उनकी जान पहचान हुई
और हमें लगा कि हम अपने एक लीजेंड के साथ वर्क कर रहे हैं। और बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अजीत सिंह साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो चूंकि टाटा में हैं, एंड टाटा आई रिमेम्बर जितने भी हैं हमारे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से लेके वो चंद्री पाल एंड मगन बिस्सा, इन लोग सब टाटा में एसोसिएट रहे हैं किसी किसी तरह से वहां पर। बचेंद्री पाल तो अभी भी वहीं पर हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल टाटा की इंचार्ज हैं एडवेंचर की। तो जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाटा से बात करके इसको परस्यू करें ताकि एनएएफ उससे किसी तरह से कनेक्ट हो सके एंड हम आगे बचेंद्री पाल इज लाइफ मेंबर्स ऑफ एनएएफ। करेक्ट करेक्ट। आप चूंकि वहां पर हैं तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं थोड़ा। जी सर। एंड बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप आज के ओकेजन में बोले। अभी कर्नल के सिंह साहब आपका अनम्यूट हो चुका है, आप थिंक आप बोलिए। हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। Can you hear me now? यस, वी आर गेटिंग। अच्छा जी, आपकी आवाज आ रही। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने मेरे को कुछ कहने के लिए मौका दिया है। मेरे को बहुत दुख है, मगन बिस्सा इतना पिछले 20 साल से ज्यादा मैं उससे जानता हूँ, बल्कि 25 साल करीब हो गए उसके मिले हुए। जब हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा नाब हेडक्वार्टर का ऑफिस हुआ करता था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के टाइम में, उस टाइम से हम लोग ने मिल करके इतना संघर्ष के साथ नाब को आज के हालात में ले आया है, उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे को और भी दुख होता है जब वो जाने से कुछ दिन पहले हमारा पास मणिपुर में आया था राजस्थान से। मगन बिस्सा जी और सुषमा जी राजस्थानी कुछ 10-12 लोगों के साथ मणिपुर घूमने आए। सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र की ये मूर्ति में उन्हें फूल चढ़ाए, मोइरांग गए जहां आईएनए फौज का सबसे पहले तिरंगा को उन्हें फहराया था, उस जगह गए थे। और बाद में वो तामू भी गए थे और मणिपुर को उन्हें खूब देखा, 4-5 दिन वहां ठहर करके। और उसके बाद मेरे को उनका देहांत का कहानी सुनते वक्त मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो सकता है करके। बहुत दुख की बात है। और मेरा साथ तो बहुत पर्सनल फ्रेंडशिप है, और जब भी हम दिल्ली आकर के मीटिंग में मिल जाता हूँ और बातचीत करता हूँ, इतना दोस्ती के साथ ये हम उसके दोस्ती को कुछ नहीं निभा रहा हूँ। उनका राजधानी पगड़ी दिया हुआ मैं मेरे घर में रखा हुआ है, और उसको देख करके उनकी याद को मैं याद दिलाते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे को सब चैप्टर डायरेक्टर से निवेदन है, इस साल मैंने कुछ प्रोग्राम करने का विचार था, लेकिन मणिपुर में अभी कोविड की वजह से कोई भी बच्चे वगैरह बुलाना वगैरह मुमकिन नहीं है, इसलिए नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे बहुत दुख है। अगले साल अगर कुछ स्थिति सुधर जाते हैं हम जरूर करेंगे, और यही प्रार्थना करूंगा हमको उसके लिए भगवान थोड़ा दुआ दे दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Colonel K. Singh. Thank you very much for remembering our legend, Sri Magan Bissa ji. Now, Miss Anuja Sahgal is there with us. She had joined. No. I don't know if she is there. So, may I request President to say final words? If anybody wants to speak anything,
wants to say? RK Sharma जी, आप बोलना चाहेंगे? विशाल ठाकुर, आई थिंक Okay. हमने सबके विचार सुने अच्छे. मैं प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज से फ्यू वर्ड्स. It's been बड़ा अच्छा लगा ये आज का ये जो दिन हमने ये जो इवेंट ये जो कंडक्ट किया है to hear about the life and achievements of Magan Bissa from all his friends and colleagues and those who have the opportunity of interacting with him. The main issues is that while we celebrate his life, we must also take his legacy forward. He has left some very essential points. One is the selfless nature of his selfless nature while conducting adventure activities at no cost, not thinking about the costs or the commercial issues. And the second issue was of helping others and while promoting adventure activities. And this is what we also need to do. This is, as long as we remember these two issues, that we need to help each other and carry forward name of Magan Bissa by conducting adventure activities in a very safe manner and doing it while I do agree that we need to think about our own expenditures, etc., maintenance costs that we incur while conducting adventure activities, but our unique selling point has to be to keep it at the barest minimum. With the highest safety standards. For as long as we can do these two things, I think there will be nothing stopping from the National Adventure Foundation name coming forth as one of the best adventure institutes in the country. And once that happens, I'm sure Magan Bissa ji will be smiling the most when he hears about this or when he sees us. So I want to thank Shushma ji, Rohit, and of course the Executive Director for organizing this. Thank you everybody for participating. Have a very nice day. Good day. Thank you very much, sir. Thank you. I think sir has already given vote of thanks for all. I just say thank you very much for participating and encouraging us to take things forward. So I close here, sir. Yeah. So I close here and thank you. We'll see you soon again in some meeting. We'll try to organize again. And finally, high tribute to Magan Bissa ji and live his legacy. We'll try to take it forward. We all should try to take it forward. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir. Thanks, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Thank you, Neelam Rawat. Okay, bye-bye, everybody. Thank you. Bye. Thank you सभी के लिए. Nice seeing. Nice meeting everybody on the virtual get together. Yes. Okay, sir. Good day and all the best. Bye-bye.